पॉडकास्ट है विद माय स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स इन दुबई, मेगस रियल एस्टेट। इनके जो दो पहलू है, मिस्टर चिंतन शाह हु इज द सीनियर पार्टनर एज वेल एज मिस्टर मनोज सोलंकी जो है उनके सेल्स डायरेक्टर। उनके साथ बैठ के ये पॉडकास्ट किया है जहां हमने वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ दुबई रियल एस्टेट के बारे में बात की है। कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, कौन से लोकेशंस पे इन्वेस्ट करना है आपको, क्या आपका रिटर्न्स मिलता है, क्या फ्रॉड्स होते हैं उधर, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, काफी कुछ चीजों के बारे में हम लोग ने इन डेप्थ बात किया है। स्टिक अराउंड एंड वॉच इट टिल द एंड। सर, माय फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो सबसे ज्यादा लोग मुझे पूछते रहते हैं। दुबई रियल एस्टेट ने पिछले 6 महीने में 2025 के फर्स्ट हाफ में 431 बिलियन दिरहम जो होता है करीबन 1,04,000 करोड़ का मोमेंटम और सेल्स किया है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस ग्रोथ, चिंतन भाई? Reason behind the growth of this success story of Dubai, of course, there are a lot of factors: clarity, security, and people are being invited by Dubai from all over the world. That is also been a factor. कि एक बोलते हैं ना कि फ्रीडम दे दी उनको कि आप आओ बिजनेस करो हमारे साथ, whatever you need the facilities we are here to provide you. So these all are the major points for global investors to come to Dubai. Lot of other countries are right now in a, particularly I'm saying about Europe, UK, America, बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है वहाँ पर, टैक्सेशन इश्यूज, सिक्योरिटी इश्यूज। सो ये सब दुबई इज केटरिंग देम ऑन अ वेरी हाई लेवल. So that is also one of the major reason where the people are coming to Dubai. And the way they are offering the real estate, the services, that's one of the topmost level right now in the world. So this is the, I must say that this is the one which create a success story for Dubai. तो आप बोल रहे हो ग्लोबल ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए दुबई इज सेफ? Absolutely. Absolutely. ऑन व्हाट वेज इज इट सेफ? अभी आपने यूएस यूके के बारे में बोला और दूसरे अदर कंट्रीज यूरोप के बारे में भी आपने बोला, पर ग्लोबली सर अगर साउथ ईस्ट एशिया भी देखेंगे वो तो सेफ है, जैसे सिंगापुर सेफ है, हांगकांग सेफ है। But look at the numbers of Singapore companies and Singapore people who are investing right now in Dubai. Why? What are the numbers and why are they investing? There are a huge numbers. I can't give you a particular numbers, but if you see, there are a lot of companies has been shifted from Singapore because of the taxation issues. Dubai is also been introduced by a corporate tax, which is 9%, which is still lower than all over the world right now. Mhm. So these are the reason. Then opening up a company, setting up the businesses, to start trading the businesses, it's very easy. Like everything on your fingertip. You don't have to talk to anyone. You don't have to go somewhere. It's all on your fingertips. So these are the facilities. They are looking. They wanted to have this with less amount of taxation, and you have a potential where you can grow your business. If you see globally, Dubai is right on the center of the world. Then your all channels are getting open. So these are the factors. Manoj bhai, you want to add anything to this? See, सबसे बड़ा reason if I have to tell you, diversification, one of the biggest reason that prominent investors के पास already across the globe assets हैं. Okay, so they want to diversify. That's one thing. Second generation investments. So what is happening is एक traditional thought process था पहले के home country में आप लेके रखो because the access is difficult. Now the access is so easy. So people are, getting into that mode of investing into different countries to get that diversification. That's second. Plus proximity, I mean the connectivity. I think one major reason is the connectivity. इंडिया से आप 2.5 घंटे दूर हो, ठीक है, यूरोप से आप 3-4 घंटे दूर हो, ठीक है, एंड ओवरऑल अगर आप जैसे सेफ्टी सिक्योरिटी तो यार हैज़ बीन देयर फॉर द लास्ट मैनी ईयर्स दैट वी नो ऑफ. सो if you are earning the right amount of money and if you're not able to enjoy the benefit of that money, what is the whole point? So I think that is another reason for people to move
to Dubai and invest in Dubai कि यार जो कमा रहे हैं उसका हम मज़ा भी नहीं कर सकते फिर. So that is another reason, because it offers you a lot of lifestyle, luxury, XYZ, बहुत सारी चीज़ें. But and transparency, which is in real estate, transparency is the most important in terms of legalities, technicalities. So वहाँ पे आपको वो सब चीज़ों की कोई problem नहीं है. So this is another reason that people are coming, and of course, proximity to multiple major cities in the world is very efficient. So I think that is one of the biggest reasons. That person I feel, and the population is also growing. यार आप देखो, मतलब 2015 में मैं गया था, population was 2.1 million. मैं दुबई की बात कर रहा हूँ. Today the Dubai population has crossed 4 million. 10 साल में population almost double हो गई है. So कुछ तो अच्छा ऑफर हो रहा होगा वहाँ पे, तभी तो लोग आ रहे हैं ना. वरना it's very easy nowadays on social media to understand कि who is doing what. So बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो रही है यार. मेरे को एक चीज़ बताओ, आपने बोला पॉपुलेशन बढ़ रही है, डबल हो गई है पॉपुलेशन. 2015 हम 2025 में बैठे, पॉपुलेशन डबल हो गई है. हमारे पॉपुलेशन जब बढ़ती है तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्ट्रेस आता है. अभी व्हाट इज द सिनेरियो ऑन ग्राउंड व्हेन इट कम्स टू द इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्टिंग दिस इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इन द लास्ट डेकेड? ओके, सी, सबसे पहली चीज़ होती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट. ओके, सो न्यू मेट्रो रूट्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड राइट नाउ. 2015 में मेट्रो था दुबई में? तभी भी था. ओके, बट अभी जो हो रहा है, मल्टीपल लाइंस कमिंग, ऑलमोस्ट 4-5 नई लाइंस बन रही है. 2028 2029 तक रेडी भी हो जाएगी. सो द गोल इज बेसिकली रीचिंग फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ दुबई टू अनदर पॉइंट इन मैक्सिमम 30 मिनट्स. ओके, दैट्स द गोल. ओके, अगर आप वहाँ पे देखोगे कंपेयर टू द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कि पहले प्रोजेक्ट्स बनते हैं फिर रोड बनते हैं. इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस, नॉट, वहाँ पे पहले सड़कें बनती हैं, देन द प्रोजेक्ट्स आर गेटिंग एलोकेटेड. ठीक है, सो you can reach that particular location before the project has been built. That is one way. There earlier Sheikh Zayed Road was the main road. आज 5 parallel roads है across Dubai जो transportation को handle करती है. Multiple underpasses, अभी flyovers. जैसे population increase हुआ तो traffic भी बढ़ा of course. हाँ. In the last 2 years of me living over there, मैंने देखा है कि कितने अंडरपासेस नए बने, कितने फ्लाईओवर्स नए बने, रोड्स एक्सपैंड हुए हैं. सो द गवर्नमेंट इज डूइंग वर्क 24/7 टू गेट अ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरऑल, एंड इट इज़ हैपनिंग. मतलब दैट इज़ द रीज़न पॉपुलेशन का बढ़ा है. अब जाके थोड़ा ट्रैफिक जाम का इशू आता है बिकॉज इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम, बट द रोड नेटवर्क इज इंक्रीज, एतिहाद रेल इज कमिंग अप. So multiple things on an infrastructure level is happening day in and out. I can see transportation work going on 24/7. So that is the kind of convenience that you have. थोड़ा ट्रैफिक तो बढ़ेगा ही यार. बट सर, ट्रांसपोर्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर तो बिल्ड होते रहता है, उसको बनने में कितना टाइम लगता है? मेन इंपॉर्टेंट वो है. आज की डेट में लोग खोद के रखते हैं रोड एंड देन बनाते हैं. उसमें फ्रॉम द टाइम इट इज स्टार्टेड, जब तक उसका ब्लूप्रिंट बनता है और जब तक वो एक्चुअल बनता है, उसका टर्नओवर टाइम कितना है? सर, ब्यूटी ऑफ दुबई, जैसे शेख जायद रोड की बात करें हम लोग, दैट्स द हार्ट ऑफ दुबई, लाइफ लाइन, शेख जायद रोड. दैट्स द मेन रोड ऑफ दुबई. Everyone would like to go from Sheikh Zayed Road. Then they'll take exits and everything. Now, when they are planning for a Business Bay Canal, that was a project was initiated in 2014 or 12 or 14 somewhere. The project by the government, that was around 2.5 billion dirhams project. So they are taking the canal from the sea and going around the city. So Sheikh Zayed Road, to stop Sheikh Zayed Road, it is next to impossible for them. And honestly speaking, when they lifted out the Sheikh Zayed Road to bypass the canal, we don't know when it was happened. It was happened like overnight. पता ही नहीं चल रहा था हमको. कंस्ट्रक्शन थोड़ी हमको डिस्टर्ब हो रही थी, बट हमको पता नहीं चल रहा था कि their planning was to lift the Sheikh Zayed Road. What do you mean lift the Sheikh Zayed Road? If you see like Sheikh Zayed Road is like a bridge. Okay. If you see the Business Bay Canal, if you see that part particularly, it's been lifted up. Okay, so the canal नीचे से जा रहा है. हाँ, canal नीचे से जा रहा है. So हमको पता ही नहीं चला कि ये कब हो गया. Okay, we know that there are diversions. But हमको लग रहा था कि भाई शायद ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं. But one fine day when we go there, it was a miracle. मैंने बोला शेख जायद रोड कैसे इन लोगों ने अपलिफ्ट कर दिया.
but it happens. कितना टाइम था ये, कितने So टाइम लगा time, I would say around 1.5 years or 2 years maybe. 18 महीने से 24 महीने के 24 अंदर. महीने के अंदर. And to uplift the Sheikh Zayed Road as it is a So lifeline. 6 lane, 8 lane कितना लंबा है? 8 lanes. 8 lane. 8 lanes on So this 16 side and lane 16 total. 16 lanes, and they uplifted 16 lanes. Like समझ ही नहीं आया हमको कि 2 क्या साल हो रहा में? है. 2 साल में. नहीं, अभी भी honest, I'll give you a very small example. अभी World Trade Center roundabout is jam packed Okay. because of traffic. Okay, so day in and out काम चल रहा है. 6 महीनों में हमने अंडरपास रेडी होते हुए देखे हैं. Literally 6 months and I'm like, ये कब बन गया? That is a kind of fascination So suddenly. now, if you see the World Trade Center, Hmm. if you see the World Trade Center circle roundabout, उनके ऊपर एक और roundabout बन रहा है. अच्छा. There is an exits coming up on top of that a current roundabout. Hmm. So that is the plan. The plan is World Trade Center is going. This is what we heard into the publicly, that World Trade Center they are demolishing. Hmm. So there are a lot of ongoing process is coming तो ये वो to divert the traffic. Plus, what we heard is that they are going underground. the what is going Roundabouts. underground? The The road. roads are going underground. Okay. This is what we heard into the news that they are planning for something where the roads will go underground. And it will connect where? Connect to the Multiple entire exits. city. Okay. Multiple exits, multiple areas. Let's say downtown. So what we heard for downtown is in the future there are no cars allowed in the downtown. Really? Yes. So the exits are coming from Sheikh Zayed Road underground to downtown parking straight away. This is awesome. Yeah. ये तो मेरे को भी नहीं मालूम था. Exactly. These are plans, So these are but the they will future execute it. plans. And of course, if they decide something, they're gonna make it. I was gonna get to that. Yeah. कि बोलने में करने में अभी ये लोग बोल रहे हैं and you are saying that once they say they do it, Absolutely. there is no denying that. No. It's just a matter of time. It's my 20 years of experience in Dubai. I have seen it in front of my eyes. Okay. Now मेरे को now coming to this point, आपने बोला 20 years, 2006 हम 2025 में 19 साल almost हो गए हैं. I landed up in Dubai in 2003 for your reference. Okay, so 2003 में आप दुबई में आए. So run me through a little bit, let the audience also know कि भाई आप हो कौन? कौन हो ये भाई आरके के पॉडकास्ट में who you? Tell no sir. मैं बहुत छोटा आदमी हूँ सर. कुछ ऐसी प्रोफाइल है नहीं. But yeah, I started my career in Dubai in 2003 as a junior accountant. Junior accountant. Junior accountant Okay. in one of the company. So I must say that my uncle brought me this opportunity to come to Dubai. He's a very prominent chartered accountant in Dubai since last 3 decades. Okay. So the idea was that first I need to work somewhere, understand Dubai. दुबई कैसे चलता है, क्या होता है दुबई में, कौन लोग यहाँ पर आते हैं, कौन बिजनेस करते हैं, सब कुछ. सो आई टुक दैट अपॉर्चुनिटी. तो 3 साल आप अकाउंटेंट थे. आई एम एन अकाउंटेंट. सो वहाँ पर मैंने फिर नए दोस्त बने दुबई में, काफ़ी कोई कनेक्शंस हुए. तो समझ में आया कि द सेम टाइम 2004 मिड से रियल एस्टेट बूम चालू हो गई दुबई में. 2004. 4 minutes. Okay. 4 मिड. तो आप जब दुबई आए थे आप कितने साल के थे? 23 साल के थे. ठीक है, 23 साल के थे एंड 2004 में बूम चालू हुआ. यस. ओके. सो लोगों से सुन रहे थे कि भाई रियल एस्टेट इज़ गोइंग क्रेजी, रियल एस्टेट इज़ गोइंग क्रेजी. मैंने बोला भाई ये चल क्या रहा है, क्योंकि पहले से अकाउंट्स में काम करने का कोई शौक तो नहीं था, बट इवेंचुअली आई नीड टू वर्क. सो मैंने बोला चलो ठीक है, थोड़ा काम कर भी लेते हैं और समझते भी है. नेटवर्क बना, फ्रेंड्स बने. फिर समझ में आया 2-3 जो करंट फ्रेंड्स थे उन्होंने रियल एस्टेट ज्वाइन कर लिया. जो कोई मोबाइल के कियोस्क पे खड़ा रहता था, कोई क्रेडिट कार्ड बेच रहा था. 6 महीने बाद उनको मिले तो पता चला कि भाई इन्होंने तो इतने पैसे कमा लिए, खुद की गाड़ी है, खुद का घर है. तो मैंने बोला यार ये रियल एस्टेट चल क्या रहा है. तो दैट मोटिवेट्स मी एक्चुअली कि यार मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ. देन आई जंप इन रियल एस्टेट 2005 एंड. फिर 2006 में धीरे धीरे समझ में आई कि भाई ये चीज़ें
चीज़ें यहाँ पर ऐसे ऐसे काम हो रहा है. देन आई स्टार्टेड माई जर्नी इन टू द रियल एस्टेट. ऐसे ऐसे मतलब कैसे, थोड़ा उसको डिटेल में सो बताइए. बेसिकली व्हाट आर द ऐसे ऐसे मीन्स बेसिकली कि व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशन. हम्म. कैसे काम होता है कि भाई डेवलपर्स है, कौन डेवलपर्स है. पहले तो वही नहीं पता चल रहा था कि डेवलप कौन कर रहा है. हम्म. ईमार है तो ईमार कौन है, कहाँ है उसका ऑफिस, पता ही नहीं है. नखील है, कहाँ है उसका ऑफिस, पता ही नहीं है. तो पहले तो ये सीखे कि भाई डेवलपर की ऑफिस है, डेवलपर यहाँ पर प्रोजेक्ट ला रहा है, लेट्स से डाउनटाउन हो गया या बिजनेस बे हो गया, तो कहाँ पर जाना है, किससे मिलना है, कौन सा प्रोजेक्ट आ रहा है, क्या फ्लोर प्लान्स है, क्या प्राइसिंग है. तो वो सब सीखना पड़ा, धक्के खाने पड़े. गाड़ी भी नहीं थी, अच्छा. मेट्रो भी नहीं था उस टाइम. अच्छा, फिर तो- कैसे जाते थे? बस में जाते थे सर. साइड से साइड. टैक्सी आई कांट अफोर्ड, हाँ. टैक्सीज आर टू एक्सपेंसिव. हाँ. तो करूँगा कैसे मैं. तो फिर बस में जाते थे, डेवलपर के वहाँ जाते थे. चलना पड़ता था 20 मिनट 25 मिनट में भी आधा घंटा. 40-50 डिग्री में. क्या करेंगे सर. तो वो सब करने के बाद समझ में आया कि रियल एस्टेट यहाँ पर इस तरीके से काम करता है. हम्म. बट अगेन उस टाइम पे दुबई वॉज जस्ट बॉर्न इन रियल एस्टेट. उनको भी काफ़ी चीज़ें पता नहीं थी, वो भी सीख रहे थे. बिकॉज पहले से एक था ना कि दुबई एंड देयर इज नो एक्सपेक्ट कैन बाय इन दुबई. अच्छा, हाँ, वो टाइम पे यू हाँ. नो आउटसाइडर्स कुडंट कोई बाय. था ही नहीं ना, कोई प्रोजेक्ट ही नहीं था. नो वन कैन बाय एक्सेप्ट लोकल्स और जीसीसी. एज एन इंडियन, यू नो, फॉरेन नेशनल्स, वी कैन नॉट बाय एनी प्रॉपर्टीज इन दुबई दैट टाइम. at that time. So इन्होंने ये कॉन्सेप्ट निकाला that anyone can buy properties in Dubai. और ये बूम जो आई, it was so crazy कि उनको ही खुद को ही नहीं समझ में आ रहा था कि which way we are going, how to handle. क्योंकि फिर उन्होंने एड ऑन किया कि भाई वीज़ास देना चालू किया. बाय अ प्रॉपर्टी गेट 3 years वीज़ा. अभी वीज़ा तो मैंने ले लिया, लेट्स से आपने प्रॉपर्टी ले ली उस टाइम पे. अभी बूम इतना था मार्केट में कि आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं, 10 दिन में आपको 15% 20% का ऑफर आता है. 10 दिन में. क्या I'm offer talking आता है? about 10 days to Resell. resell your product at 15% 20% प्रीमियम. अच्छा. तो आप बोलते हो यार ये तो बेटर है, 5% का मैं चेक लिख रहा हूँ, आई एम गेटिंग 20% ऑन टॉप. अभी आपने 5% का चेक लिख दिया, बाइंग भी कर ली, आपने वीज़ा भी ले लिया गवर्नमेंट से, 20 दिन के बाद आपने प्रॉपर्टी बेच दी. तो वो वीज़ा का क्या हुआ. वो वीज़ा यू आर स्टिल ओनिंग दैट वीज़ा. हाँ. दूसरा बायर आया, मनोज ने बाइंग की. मनोज ने 10-15 एक महीने के बाद उसने भी प्रीमियम पे प्रॉपर्टी बेच दी, बट उसके पास भी वही प्रॉपर्टी पर वीज़ा है. ओके. यस. सो देयर वाज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन. उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि इसको कैसे हैंडल करें हम, बिकॉज दे जस्ट बॉर्न. फिर उन्होंने वापस लॉट ऑफ स्ट्रेटजीज निकाली. आपके वीज़ास कैंसिल करवाए, इनके वीज़ास कैंसिल करवाए. फिर देयर वाज अ सर्टेन टाइम उन्होंने वीज़ा स्टॉप कर दिया कि दिस इज़ नॉट द राइट वे टू इश्यू एन इन्वेस्टर वीज़ा ऑन द प्रॉपर्टीज. फिर जाकर ये गोल्डन वीज़ा अभी जो 2-3 साल से जो आया हुआ है, दैट इज़ ऑन अ प्रॉपर मैनर, प्रॉपर सिस्टम कि इफ़ यू टेक अ वीज़ा ऑन योर प्रॉपर्टी and when you are selling the property, first you need to cancel your visa. Okay. Otherwise you are not, even the government will not approve your transaction because your visa is alive. That's a smart way. नहीं तो फिर लोग आते रहेंगे, खरीदते रहेंगे और खत्म. This is what I'm telling you, 2004, 5, 6, all messed up. All messed up. अभी 2008 में लेमन ब्रदर्स का डाउनफॉल हुआ. What was the scenario of Dubai real estate then? Don't ask me. I am asking you, sir. I want to know. It was nightmare. But again, see, दुबई का क्या गलती था. लोग बोलते हैं दुबई खराब हो गया, दुबई खत्म हो गया, दुबई वॉज फिनिश्ड. क्या गलती था दुबई का. दुबई की वजह से लेमन क्रैश हुआ था. Greed. वो किसी और का ग्रीड था. So global. That was a global problem. Correct. Which hits Dubai. Correct. Which hits Dubai very badly. But Dubai में at that time also there was no problem.
पीपल आर बाइंग सेलिंग चल ही रहा था, बट वो ग्लोबली आया था क्रैश, उसमें दुबई वॉज हिट, उसकी वजह से मार्केट क्रैश हो गई. आई स्टिल रिमेंबर 2008 October, there was a cityscape, so it's a property exhibition globally, तो वो दुबई में हो रहा था. It was in October or November 2008. We finished that event. एक महीने के बाद market was silent. What do you mean market was no buying, no selling, nothing? People are running away. Everyone knows what happens in 2008, right? People was running. Nobody was willing to invest. Nobody, जो लेकर बैठे थे वो भी भाग रहे थे, because some people has taken a mortgage, because at that time you are getting finance from the banks on your under construction properties, जो अभी नहीं है. Okay. अभी नहीं है. Okay. सो वहाँ पर प्रॉब्लम वो भी हो गया था कि जिन्होंने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी बाय की थी एंड दे हैव टेकन अ मॉर्गेज, वो लोग फंस गए, जॉब्स चली गई, मॉर्गेज चल रहे, हाउ यू गोना सर्वाइव. तो वो सिनारियो बहुत ख़राब था. तो एक महीना साइलेंट था. एक महीना साइलेंट नहीं था सर, ज़्यादा टाइम 2 साल साइलेंट था. हाँ. 2 साल, यानी 6 महीने तो सर मुझे याद है कि 6-8 महीने तो ऐसे थे कि मेरा फ़ोन, एक्सेप्ट माय रिलेटिव्स एंड माय फैमिलीज, मेरा फ़ोन बज ही नहीं रहा था कि भाई कोई क्लाइंट फ़ोन कर दे, किसी को मैं फ़ोन करूं वो उठा ले फ़ोन मेरा. इट वाज नथिंग. सर्वाइव कैसे किया सर सर्वाइवल, आई थिंक वो भी एक बहुत लंबी स्टोरी है. बोलो सर, अपने पास बोलो. हाउ इट वाज वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट. यानी टचवुड के एक था कि बीइंग ए गुजराती थोड़ा तो दिमाग था कि भाई पैसे को सेव करना पड़ेगा, सेव नहीं करेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे. एंड आई थिंक दैट वाज हेल्प मी आउट वेरी वेल. थोड़ा पैसा था मेरे पास, इतना भी नहीं था कि मैं 1-2 साल निकाल सकूं, बट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ माय कलीग्स, माय ओल्ड फ्रेंड्स, कि क्या हुआ उनके साथ. सो इट वाज अ वेरी स्कैरी सिनेरियो, वेरी स्कैरी. So fast forward 2 years, 2010, 2011, 2-3 years fast forward. ये वापस कैसे पिक अप? सो 2008 के बाद देयर वाज नो प्रोजेक्ट्स इन दुबई. जो थे वो भी बन नहीं रहे थे, डेवलपर्स भी भाग गए थे. अभी वहाँ पर सबसे जो दुबई इतना सिस्टमेटिक ऑपरेट कर रहा है रियल एस्टेट को, बिकॉज उन्होंने वो गलतियाँ जो भी हुई थी पहले वो सब रेक्टिफाई की उन्होंने. सो देयर वाज नो एस्क्रो अकाउंट इन दोज डेज, तो डेवलपर को पैसा जा रहा था. पेमेंट प्लान वाज वेरी फ्लेक्सिबल, पे 5% एंड बुक योर अपार्टमेंट. बट वो 5% जो जा रहा था वो डेवलपर के पास जा रहा था. तो वो क्या हुआ कि जब क्रैश हुआ ना, जितने क्लाइंट के पैसे थे, जो भी डेवलपर वहां से निकले थे, वो सब वो पैसा लेकर चले गए. पब्लिक का पैसा लेके चलो. पब्लिक का पैसा लेकर चले गए. फिर रेरा आया. उसके बाद 2010 में या 9 में रेरा वाज इम्प्लीमेंटेड इन दुबई, कि अभी कोई भी प्रोजेक्ट होगा उसके अंदर रेरा से ही अप्रूव होगा. एक कमिटी फॉर्म हुई, जो रेरा जो एस्क्रो अकाउंट्स है उसकी एक कमिटी फॉर्म हुई. उसके बाद वो एक प्रॉपर चैनल और प्रॉपर सिस्टम से काम करना चालू किया. यानी आज आप देख लो, अगर कोई डेवलपर चला भी जाता है, नो प्रॉब्लम, देयर मनी इज सिक्योर्ड. बिकॉज कोई भी, ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टॉप 5 टॉप 10 डेवलपर्स, बट अगर कोई भी नया बंदा भी आता है टू स्टार्ट डेवलपमेंट, दे नीड टू put around 20 to 30% deposit of their project value to government. Okay. escrow में डालना पड़ता To start marketing their project or start launching their project. So समझो कि अगर मेरा 100 मिलियन का है तो मुझे 30 मिलियन पहले मुझे लैंड रेरा में डिपॉजिट रखना पड़ेगा to even market my project. that's a good thing, no? So इवेंचुअली दे आर सिक्योरिंग द क्लाइंट्स, कि अगर कल उठकर कुछ भी हो जाता है तो एटलीस्ट माय इन्वेस्टर्स हु आर ट्रस्टिंग दुबई टू इन्वेस्ट, दे आर सिक्योर्ड. Okay. So what advice would you give to people who are
buying this for the first time in Dubai, someone who's navigating through the whole process. Let's talk about resale separately and let's talk about under construction separately. क्या क्या आप दोगे, जो एडवाइस दोगे लीगली, फाइनेंशियली, और क्या प्रैक्टिकल चैलेंजेस आते हैं जब कोई फर्स्ट टाइम दुबई में बाय कर रहा है व्हेन इट कम्स टू सच अ सिनेरियो? See, when people are coming to buy a property first time, see, Dubai, if you talk about now, every left, right, and center, the new projects are launching. हाँ, ठीक है, बट कितने प्रोजेक्ट्स सक्सेसफुल जाएंगे इन टर्म्स ऑफ अप्रिसिएशन? और डिलीवरी? डिलीवरी विल बी ऑन टाइम, डिलीवरी भी ऑलवेज ऑन टाइम. अभी तो कोई चांस ही नहीं है कि कोई डेवलपर बैकआउट कर जाए. सो इट इज़ नॉट द पॉइंट. जो मेरे पास लोग आके बोलते हैं मैं अंडर कंस्ट्रक्शन में डरता हूँ क्योंकि मेरे को मिलेगा नहीं मिलेगा, वो खौफ Because- जो है लोगों का, वो उनको समझना पड़ेगा ना कि नाउ दुबई इज चेंज. पहले की बात अलग थी, 2007, 8, 5, 6 की वो बात अलग थी. वहाँ पर कोई एस्क्रोज नहीं थे, कोई कमिटीज़ नहीं थी, कोई इतने वाइडर लॉज भी नहीं थे कि जो सिक्योर करे बायर को. नाउ एवरीथिंग इज चेंज. एज आई सेड बिफोर कि जो डेवलपर्स को डिपॉजिट्स रखने पड़ते हैं, उसके बाद भी क्या होता है, इफ़ यू बाय अ प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन, लेट्स से आपने 10% पेमेंट करके प्रॉपर्टी को ब्लॉक किया, प्लस यू पेड 4%. सो व्हाई यू आर पेइंग 4%? इट्स अ रजिस्ट्रेशन फीस, everyone knows. But why it is so important? Because it shows to the government that this property has been booked by Ravi, and usko basically certificate of ownership, which is called OCUD, under construction, we need to give it to him. So even if you see technically, you are secured by the government because you have paid 4%, and in their record your name is there that you paid 4% for such and such property and to and so developer. So your property will be secured by the government. बट देखो नहीं, I'll tell you the other thing is from a, इसमें कैसा सिंपल है, जैसे अदर मार्केट्स में कैसा होता है, रजिस्ट्रेशन डिले करते हैं जानबूझ के, अलॉटमेंट लेटर पे काम होता है. वहाँ पे ये सिस्टम नहीं है. दे वांट टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम डे वन, द बायर. The buyer. के ये आपने प्रॉपर्टी खरीदी, 4% आपको विद इन फर्स्ट 2 months पे करना ही करना है. सो योर प्रॉपर्टी इज रजिस्टर्ड इन योर नेम, सो देर इज़ नो चांसेस ऑफ मल्टीपल सेलिंग वन यूनिट टू मल्टीपल बायर्स. वो सब वहाँ पे नहीं होता है. दिस इज़ फॉर योर ओन प्रोटेक्शन, दैट इज़ वन थिंग. सेकेंडली, सी अगेन ना, जैसे लास्ट टाइम हमने बात की थी, द होल पॉइंट इज सारे प्रोजेक्ट्स, एवरी प्रोजेक्ट हैज़ इट्स ओन प्लसेस एंड माइनसेस. ठीक है, आपके इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में कौन सा प्रोजेक्ट सही बैठता है वो जानना ज़रूरी है. ओके. ठीक है, अगर आपको एकदम, जैसे लास्ट टाइम हमने कहा था, डिस्कस भी किया था, कि गैलेक्सी दिखा दिया, स्टार्स दिखा दिए, 300% का रिटर्न दिखा दिया, 500% का रिटर्न दिखा दिया, और आप बह गए उस इमोशन में, देन यू विल हैव अ प्रॉब्लम. ओके, सो आप बोल रहे हो फर्स्ट टाइम बायर के लिए डेवलपर डिलीवर करेगा ही करेगा. अगर डेवलपर नहीं करेगा तो फिर एस्क्रो अकाउंट से जो है पैसा उससे गवर्नमेंट डिलीवर करेगा. बिकॉज एस्क्रो में ऐसा है ना सिस्टम के जो 10% आप पेमेंट कर रहे हो वो डेवलपर को नहीं जा रही है, वो सब गवर्नमेंट को जा वो रहा है. सब गवर्नमेंट को जा रही है. एंड व्हेन डेवलपर विल गो टू द गवर्नमेंट टू विड्रॉल द मनी फ्रॉम द एस्क्रो फॉर हिज फर्दर कंस्ट्रक्शन, सो डेवलपर, द गवर्नमेंट विल गो टू दैट प्रोजेक्ट ऑन साइट, they will visit, they will issue the report that yes, as per the developer, the 20% construction has been done. Now we need to transfer another 10% from the escrow to his account to complete further. So that is solved. That report will be published Online. into the land department website. Okay. If you search about the project and project number, you will see the what is the construction and what is the percentage it has been done. सही है. तो एक वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. नाउ व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट द बायर शुड कीप इन माइंड? आप बोल रहे हो कि व्हाट वाज द थिंग दैट यू वर मेंशनिंग? द इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग. क्योंकि आप पर्सनली, काफ़ी बार क्या होता है, इंटरनेशनल बायर्स बहुत होते हैं. ठीक है, सपोज आपने कोई रोड शो अटेंड कर लिया और आपको वहाँ पे 2 दिन में सब कुछ समझा दिया कि ऐसा होगा वैसा, और आप उसी जोन में फिर बाय कर रहे हो. प्रोजेक्ट आपको डिलीवर होने वाला है, उसमें प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो पहले से ही अनरियलिस्टिक
सेट हुई है. in the sense of capital appreciation. Capital appreciation, rentals, flipping, Okay. So that is where, see, the biggest advice or the best advice I can give is come to us. Sir, this is a podcast. This is not for sales. This is for knowledge. No. Knowledge, sir. I'm boasting my sales. No, you experience. sell. You said you're director of sales, sir. So you have to talk about yeah. sales. I don't take that नहीं, away because from हमने you. बहुत buyers को बेचारों को genuinely हमने देखा हुआ है. They Correct. are suffering because of the wrong notions that they had from the beginning. Okay. प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, Okay. लेकिन उनके पूरी कैलकुलेशन हिल गई है. Chalo, let me give you another example. Now, last time when I was in Dubai, I saw a board, right? 10% returns in 10 years. Yeah. मैं शॉक हो गया. मैं बोला 10% in 10 years guaranteed. बोला भाई ये कैसे हो सकता है? अभी मेरे को एक चीज बताइए, रियलिस्टिकली इज दिस पॉसिबल? इफ दिस इज नॉट पॉसिबल, then what is possible? As a buyer for Dubai properties, मेरा क्या एक्सपेक्टेशन होना चाहिए जो मेरे ऑडियंस को, जो हमारे बायर्स होते हैं, जो लोग खरीदना चाहते हैं, हम लोग के थ्रू खरीदे नहीं खरीदे सब छोड़ दो अलग, लेकिन उनका एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए रेंटल रिटर्न और कैपिटल अप्रिसिएशन, दो चीज के मामले में? See, rentals, I would say, on a very realistic level, you can assume anywhere between 5 to 8%. Okay. Depending on the location you choose, depending on the property you choose, and depending on the money that you want to invest. It varies. This is the realistic. अगर आपको कोई बोल रहा है सर 12% रेंटल इनकम, 16%, इट्स ऑल रबिश. Okay. ठीक है, वो आपकी किस्मत करोड़ों में एक होगी तो हो सकता है वो. और यू बीन एन अर्ली बर्ड इन्वेस्टर, देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी. From a capital appreciation point of view, again it's very debatable. I'm giving you a very generic scenario कि आपने एक decent under construction project choose किया जो 3 साल में हैंड ओवर होने वाला है, तो 20 to 30% अपसाइड आप पकड़ के चल सकते हो On the capital on the appreciation. capital. And from there are certain locations जो बहुत exclusive है, they have shown 50, 60, 100, 200% appreciation also. But that's project to project and how quick you are to take a decision. वहाँ पे यूनिट मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है. Okay. तो आप जनरल इन्वेस्टर तो अनफॉर्चुनेटली वो टैकल ही नहीं कर पाएंगे. बट ऑन अ रियलिस्टिक साइड 5 to 8% की आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए. यू शुड बी रेडी फॉर 5 ऑल्सो एंड यू शुड बी रेडी फॉर 8 ऑल्सो. So anything below 5% is not recommended and anything above 8% is bonus. इट्स बोनस. वैसा पकड़ के चल Correct. सकते. क्योंकि 5% अगर आप नहीं करोगे सपोज, तो फिर फायदा ही क्या हुआ ना फिर. ठीक है, 5% से नीचे ही करना है तो फिर कौन करेगा? बराबर मतलब क्या है? बेटर आई थिंक बॉम्बे में भी आपको 2-3% तो मिल ही जाता है. तो बराबर, बेटर टू बी हियर. करेक्ट. फिर 5% से नीचे करना है तो आने का मतलब नहीं है. और कॉमन सेंस है कि जितने भी इकोनॉमिक रिपोर्ट्स आते हैं वो सब 5% एनुअल इन्फ्लेशन का तो रेट देते ही है. Correct. इफ योर प्रॉपर्टी इज नॉट गोइंग टू बीट योर इन्फ्लेशन रेट, देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट प्रॉपर्टी? Exactly. ठीक So है. average, as Manoj said, 5 to 8%. What is the average? But हाँ, जो 16%, 18% आप ले लो, अभी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. अरे सोशल मीडिया पे तो चलता है ना भाई ये अभी. मतलब I don't think so. sometimes I see the ads on social media and I'm like, छोड़ो यार. It's And again, appreciation is also, it's not overnight. ओके. Appreciation is not overnight. Okay, आपको बहुत लोग मिलेंगे कि आप अभी ले लो, 20% पेमेंट कर दो, 30% पेमेंट कर दो. You will easily sell it off at 20% premium, 30% premium. It is not possible. What is possible? Possible, either you will hold the property until it get matured, like 70-80% of the payment, where everyone know the construction has started, you can see the building, it's all going on, and people would like to know about this building कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पर कुछ है कि नहीं, ये लोकेशन अच्छी है, ये ऑलमोस्ट अभी 1 साल 1.5 साल में रेडी हो जाएगी, वहाँ पर मुझे कोई प्रॉपर्टी मिल रही है क्या, तब जाकर एक डिमांड क्रिएट होती है. यू कांट क्रिएट डिमांड विद इन पेमेंट ऑफ 20-30% बिकॉज उसमें क्या होता है कि इन दैट ड्यूरेशन डेवलपर के पास भी काफ़ी कैंसलेशन आते रहते हैं, तो वो भी तो प्रोडक्ट बेच रहा है ना. तो आपको अगर आपके सेकेंडरी बायर को इन्वेस्टमेंट करवानी है आपकी प्रॉपर्टी में, वो कब करेगा? जब ही डजंट हैव एनी वेज, कि कोई रास्ता ही नहीं है कि डेवलपर के पास भी माल नहीं है यहाँ पर, तो कहाँ मैं जाऊँगा. सो लेट्स टॉक अबाउट कि भाई सेकेंडरी में क्या मिल रहा है, तो वहाँ पर से आपकी एक डिमांड चालू होती है. बट इट इज़ एवरेजली 60 to 80% प्रोजेक्ट नीड्स टू बी और पेमेंट नीड्स टू बी फिनिश. उसके बाद रियल अप्रिसिएशन यू कैन सी. Real appreciation.
just give me in percentage wise 1% or an average percentage. जैसे 5 to 8% rental yield का percentage दिया, वैसे capital appreciation when the project is at 70%, forget 70%, the project is ready, possession मिल रहा है आपका, handover जो बोलते हैं उधर, handover मिल रहा है, what should be my realistic expectation on capital appreciation? See, it's all depends. Projects, Average. location, everything. जैसे मनोज ने भी अभी आपको बताया कि कोई projects में आपको 50, 60, 70, even 100%, 200% भी मिला है. But average is between 20 to 30%. What we are looking at. So That's the standard. over a period of 3 to 5 years of the fruition of the project, you are looking at 20% to 30% appreciation. अगर बहुत ज़्यादा मिल रहा है वो भी आपका है, ठीक है, मेरा तो है नहीं कुछ. तो ठीक है. 20 to 30 is the average, you know, that you can minimum, this is the amount you're gonna get it. But इसके ऊपर 50 भी गया, 60 भी गया, it's all yours. But this is realistic. Yeah, realistic. Realistic. And secondly, the one more thing is जो आजकल हमने देखा है काफ़ी, which misguides a lot of buyers is कि काफ़ी हमने सेल्स पे जैसे लोगों की सुनी है कि 20% प्लस 4% आप पे करो, विद इन 6 months आप उसको 20% पे फ्लिप कर दो. भाई मैं अगर नया बायर हूँ तो मैं 40% पे करके NOC लेके 3 साल क्यों वेट करूंगा एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को रेडी होने के लिए. The same case I received what Manoj talked. अभी 2 हफ्ते पहले एक कलीग मेरी ऑफिस में वो मुझसे बात करने आई, मुझे बोल रही कि सर आई नीड टू स्पीक टू यू. आई सेड यस टेल मी. तो सेम केस, किसी ने बेच दिया होगा उनको प्रॉपर्टी, बोल रहे 20+4 आप पेमेंट कर दो एंड उसके बाद मैं आपका नेक्स्ट पेमेंट जो आएगा 3 महीने के बाद जो 10% का आएगा, उसके पहले मैं आपकी प्रॉपर्टी 15% प्रीमियम पर बेच दूंगा. एंड दैट गाय वाज स्टक कंप्लीटली. उसके पास पैसे नहीं, बायर के पास, बायर ने खाली उसकी जबान के ऊपर धंधा कर लिया था, ब्रोकर के. दिस इज समवन एल्स. और ये अभी हम लोग के पास आया, ये हम मेरे लोग के के पास आया कि भाई दिस इज आई हैव दिस प्रॉपर्टी, आई नीड टू सेल इट ऑफ. एंड ही इज 2 इंस्टॉलमेंट उसके ड्यू ऑलरेडी हुए एंड ही डजंट हैव अ मनी टू पे. फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ. सो ही इज बीन स्टक कंप्लीटली. सो ही उसके पास 2 रास्ते, या तो डिस्ट्रेस में प्रॉपर्टी को बेच दो या फोरफिट करो डेवलपर के साथ. आई डोंट हैव अ मनी. So ये हो But why 20+4? Again, it's a technical question. Why 20+4 उसने बोला कि भरो? Because broker will get his full commission. वो अपना 2%, 4, 5, 6 जितना भी होएगा. Whatever. It all depend on the developer to developer. जो भी होगा. But why 20+4? Because of the reason कि भाई मैं अपना पैसा निकाल रहा हूँ, फिर आपका जो होना होगा. That is wrong. That is unethical. See, that is unethical. Yeah. That is the reason we've been able to survive. You've been able to do such amazing work. See, quality never goes wrong in a very simple way. आप चाहे इंडिया मार्केट करो, दुबई करो, न्यूयॉर्क करो, लंदन करो, कहीं पे भी करो, अगर आपका इंटरेस्ट इज योर क्लाइंट्स इंटरेस्ट, यू विल ऑटोमेटिकली बेनिफिट आउट ऑफ इट. लेकिन आपको अपना इंटरेस्ट पहले रखना है क्लाइंट से, तो यू आर गोइंग टू गो डाउन द ड्रेन फॉर श्योर. Going a little bit more towards the positive side, I hate talking about these things because मैं एक अलग ही रास्ते में चले जाता हूँ. I go down the rabbit hole and it pisses me off. नहीं, but this is the issue ना. The whole point is कि people should be aware. जैसे तूने कहा जब तक बुरे लोग नहीं होंगे तब तक साला अच्छे लोग कैसे डिफाइन. You always need evil. दशहरे का टाइम है. Evil always is taken over by good. राम का हमेशा रावण के ऊपर ही अटैक होता है ना, तो इनमें गया रावण ना. So anyways, वो पॉइंट अलग है. मेरे को लोकेशन के बारे में बात कर, हम लोग लोकेशन के बारे में बहुत बात कर रहे हैं. आई वॉन्ट द टू ऑफ यॉल, ग्राउंड रूट, ब्रोकर टू ब्रोकर, पब्लिक को बोलने के लिए 3 एरिया आप आइडेंटिफाई करो, 3 अलग एरिया आप आइडेंटिफाई करो. मेरे को आप लोग दोनों से 6 एरिया चाहिए जहां लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए. एक कैपिटल चलो मैं डिवाइड कर देता हूं. आपसे और आपसे मेरे को चाहिए कैपिटल अप्रिसिएशन और आपसे चाहिए रेंटल अप्रिसिएशन. मैक्सिमम कौन से एरिया में जाना चाहिए और कौन से एरिया में आपको बिलीव है कि अब फ्यूचर है दुबई का? So 3 areas. हाँ जी. Dubai South. Okay. Which is the new airport is opening up. Al Maktoum. Al Maktoum Airport. Second area, Palm Jebel Ali. Third, Dubai Island.
Okay, hold that thought. 3 areas for rental appreciation. Rental- Residential or commercial, anything is okay. See, for rental, one is Arjan. Because of the proximity, it's very central. Dubai Miracle Gardens के आसपास है, yet undervalued and good options you get. So that's one option which I personally recommend. Dubai land में there are certain communities which are very very nice. Stable communities. I am not a speculative person. मैं stable rentals की बात करता हूँ. See, prime areas को छोड़ दो, वहाँ पे तो मिलना ही मिलना है. ठीक है, वहाँ projects ही नहीं आज की तारीख में सबसे पहले, तो leave those areas aside. So I would say Arjan, okay, certain portions of Dubai land, and from a future perspective, जहाँ जहाँ metro station आ रहा है. नहीं, इतना मेरे को एक एरिया बोलो. See, Arjan, Dubai land, certain areas, and I mean बाकी तो उन्होंने कवर कर लिया. नहीं बोलो अभी यार. From a rental, ना मुन्ना ना. नहीं, because दुबई साउथ में भी रेंटल्स अच्छे. नहीं मुन्ना, वो उन्होंने वो क्लेम कर दिया. वाह. थोड़ा मजा भी तो करें हम, ऑडियंस को मजा तो दे. ओह, इतना बोरिंग काम पे बिठा दिया मेरे को. नहीं, but I think downtown. I'll still prefer downtown. Downtown, Arjan, and and some parts of Dubai land. Yes. Okay. Stability wise also. Dubai South, Palm Jebel Ali and Dubai Island. Dubai Island. दुबई आइलैंड. अभी मेरे को आप बताओ, दुबई आइलैंड में क्या रेट था, क्या रेट है और क्या रेट आप एक्सपेक्ट करते हो. सेम थिंग फॉर पाम जबल अली एंड सेम थिंग फॉर दुबई साउथ. ये तो बहुत लंबी कन्वर्जेशन हो. नहीं सर, छोटे में बोलो ना, बिफोर एंड आफ्टर बोल दो बस मेरे को. So let's talk about Dubai Island. So Dubai Island developed by Nakhil. Now it's Dubai Holdings. So initially उन्होंने प्लॉट लॉन्च किए थे at the price of 180 dirham. व्हाट ईयर, कौन सा साल? 2 साल पहले, 2023. 2023, 22-23. 22-23, चलो ठीक है. 22-23 में कितने में लॉन्च किए थे? 180 dirhams average 180 दिरहम per square feet. दुबई Okay, आइलैंड for residential plots. रेसिडेंशियल. ठीक है. अभी उसकी मैं प्राइसिंग आज की मार्केट में देखूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बीच फ्रंट प्लॉट्स, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द सेंटर प्लॉट्स. वहाँ पर मेरे हिसाब से आज कुछ भी अवेलेबल नहीं है लेस देन 650 दिरहम पर स्क्वायर फीट. 2 साल में 2 साल में 200 पकड़ के 650. एग्जैक्टली 300%. 3.5. एग्जैक्टली. दुबई आइलैंड, दुबई आइलैंड. पाम अभी जबल अली. दुबई आइलैंड में प्रोजेक्ट्स की बात करो, हाँ. ठीक है, जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं. सो इनिशियली नखिल हैज स्टार्टेड द फर्स्ट प्रोजेक्ट इन दुबई आइलैंड. वो उन्होंने बेचा था बीच फ्रंट प्रॉपर्टी एट द प्राइस ऑफ 2200 दिरहम Roughly पर स्क्वायर 2,000, फीट. 2,200. 2200 रुपया, 2200 दिरहम पर स्क्वायर फीट. हाँ. बीच फ्रंट प्रॉपर्टी, सी व्यू. सी व्यू, Ocean view, sea प्राइवेट view. बीच ओके. विद प्राइवेट बीच. हम्म. आज वहाँ पर जो नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं वो हो रहे हैं मिनिमम 3,500 to 4,000 दिरहम पर स्क्वायर फीट. सो 2000 से 3,500 Hmm. यानी हुआ करीबन 75% 50 to 75. इन 2 years. So this is why Dubai Island is an opportunity. पाम जबल अली. Palm Jebel Ali, sir, very iconic project, long awaited. उसका पास्ट थोड़ा खराब था, but now that is the future. So Palm Jebel Ali Villa was launched last to last year, correct? Last To last year. 2023. Yeah, 2023. 5-bedroom was launched at 18.2 million. 6-bedroom was launched at around 20 point something. And 7-bedroom was start at 29 million onwards. 29, 31. So, Palm Jebel Ali, if you compare with Palm Jumeirah, what is Palm Jumeirah now? So 5-bedroom average so Palm Jumeirah has 3 different type of villas: Canal Cove, Garden Homes, and Signature Villas. So let's talk about Garden Home and Signature Villas in Palm Jumeirah right now. So जो भी आप, I'm talking about Palm Jumeirah को हो गए 15-16 साल लॉन्च हुए. तो if you take the Palm Jumeirah 4-bedroom garden home at the original condition where the Nakhil has built it out, original condition, वो आपको आज के दिन में एवरेज मिल रहा है 30 से 35 मिलियन का. और तभी कितना था?
They launched it at 2.5 million. Two In point- the year of 2005, 4. 2005, 2.5 million. 2025, 35 million. Yes. And if you look for the upgraded one, if you look for a same garden home, upgraded one, which is going for 50, 60, even 70 now, 70 million. And Palm Jabal Ali is what you are saying is going to be the future Palm Jumeirah. Let's say The better Palm Jumeirah. the better Palm Jumeirah, the bigger Palm Jumeirah, because Palm Jabal Ali is twice the size of Palm Jumeirah. और वहाँ पर जो अभी 5 bedroom, 6 bedroom, 7 bedrooms आ रहे हैं. So if you see the 5 bedroom and 6 bedroom sizes in terms of the plots, in terms of built up, it's the same size of Palm Jumeirah signature villas. So top end is over there is what you are getting Starting over one. here at. Yes. 18.34 earlier launch. And now? Now, It's somewhere around 23, 24. So still around 30% improvement from 18 to it's gone to 22, 24, 23. the recent transaction was happened for a 5 bedroom at 24.5 million. और उनके जो नए अभी एक नया launch आ रहा है, that is starting at 25. Launch पे. Dubai South. Dubai South. See, Dubai South, Maktoum Airport. So I'll tell you, Emaar launched Dubai South as Emaar South as a community in Dubai South. That they have started selling the townhouses of 3 bedroom and 4 bedroom. So उन्होंने townhouses start किए थे 1 million dirhams, 3 bedroom, Okay. which is now around 2.3, 2.4 Roughly. Okay. So that What this year was this? Year I'm talking 5-6 somewhere years around back. 18, 2017, 18. Yeah, 1 million is 2017, 2018. This is 2025. 6 to 7 years now. We are looking at 2.5. 2.5 million. So 150% improvement over a period of 7 years. Okay. This is Dubai South. This is Dubai South. अभी उस टाइम पे लोगों ने लॉन्च किया वहाँ पर, तो लोग बोल रहे कहाँ पर है? It's a desert. कौन जाएगा उधर? 45 minutes, 40 minutes from downtown. It's too far. But see, this is where people are getting mistake. Why? अगर reputed developer, let's say 3 developers, top of Dubai, if they are launching something far, why? Because they know something is coming. Some future is there. And look at now. Al Maktoum Airport has fully operated. There are a lot of other things are coming. The development is going crazy over there by government. Forget about the developers. The I'm private. I'm talking about the government. Government is putting a lot of money over there to infrastructure to get best of the best services. Okay. I'll tell you another angle to it. As per the estimates, the expected people to be employed in that vicinity is going to be around 1 million people. At the Al Maktoum area. Around the airport. Dubai South. Yes. 1 million. ठीक है? I'm saying, okay, maybe चलो, million is a little too ambitious. आप उसको 50% भी करो. 500,000 people getting employed in a vicinity. You need houses for rent, for everything. That's the simple story. The logic is very simple. Believe in the vision of the people who are higher than you. अगर कोई इतना बड़ा पैसा कुछ सोच समझ के ही डालेगा ना, आपको तो बस अलाइन करना है अपने आप को उस विजन से. You just stay aligned to that vision and you'll make money. You don't have to use your brains also sometimes. So that's the simple logic that can be given for that area. So basically, कोई भी developer, कोई भी community launch कर रहा है, top 3 developers I am talking about. So there will be something. कोई visionary है, कुछ है वहाँ पर कि government यहाँ पर अभी desert है, but why they are going there? What is the reason? उनको पता है कि भाई government यहाँ पर कुछ करने वाली है. And that's the benefit you need to take it. Done. Arjan, rentals. Why? See, How much? I'll tell you the reason. First of all, the location is very central as of today. Arjan is 10 minutes away from Mall of Emirates. Okay.
इतनी कंपटीशन नहीं है वहाँ पे इंटरनली. अर्जान के जस्ट पीछे इज JVC, Jumeirah Village Circle. More than 40-45,000 units are expected to come at that on handover in the next 2 years. So a lot of internal competition, first of all. Arjan ki accessibility is much more better than JVC as of today. हाईवे के एकदम बाजू में है. On the Sukim Road. And Okay. you can go in and out very easily. That's one thing. Okay. Plus इतने ज़्यादा डेवलपर्स भी नहीं है वहाँ पे, क्योंकि लैंड भी इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है. सो अच्छे बुटीक प्राइवेट डेवलपर्स जो टॉप 4-5-10 है वो है वहाँ पे, जो अच्छा प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं. सो accessibility is fantastic. It's opposite Dubai Hills, you know. So that is one thing. And less competition. Rent. As I told you today, so recently one of my client who bought a 1-bedroom 3-4 years back for 1.1 million dirhams is getting 110,000 dirhams rental. So that's 11%. He's getting it. I have proof, so I can show. I have no problems. 11%. Yes. So that's beating the average that you yourself said of more than Exactly. 8%. He's getting it, and I can proudly say this because he bought it from me, and he's getting 110,000 rental in his hand. So I am saying, of course, the capital value is also appreciated, and the per square feet price has also gone up now. So if you're buying a 800 square feet 1-bedroom for 1.2-1.3 million today in Arjan, for an example, you will still fetch a good 80,000 rental income on that. That's 7.5%. Exactly. Plus minus. Exactly. ठीक And है. sizes. Again, a lot of people go wrong in the sizes as well. You know, the 1-bedroom should be more than 600-650 square feet Okay. at least. You can't have a 500 square feet 1-bedroom. Let's me be very honest. Okay. In the longer run, In Dubai. in Dubai. Okay. So, Second area you mentioned was? Dubai land, some communities, the reason is because from a you do not get a 2-bedroom in a nice community living for 1.5 million dirhams in most of the areas in Dubai. I'm talking about community. I'm not talking standalone buildings. When you say community, you mean to say something like a Dubai Hills estate? Yes. Correct. Okay. Yes. So, because it's a family living, it's a community, so the rentals are pretty stable. 2-bedroom, if you buy in today's time in that community, 1.5 million is the average pricing. And the rentals is a good 90,000 to 100,000. So, first of all, in that community, in Dubai in general, you will not get a community living for 1.5 million dirhams for 2 bedrooms. आपको standalone buildings मिल जाएंगे. एक proper community जिसमें schools आ रहे हैं, hospitals आ रहे हैं, hotels आ रहे हैं, वो नहीं मिलेगा. So that is Parks one and area. everything. Everything. It's one of my favorite communities. मैं खुद उधर देख रहा था एक time पे. So that is something which is interesting. And of course, downtown is Rentals. rentals. Yeah. What is the rental we should expect? As I told you, 7% average. 7%. So on a 1.5 million, you're looking at 100,000. For a 2-bedroom. Okay. Very stable, very decent investment. And affordable at the same time, yet good. So someone who जो अपनी जिंदगी की पूंजी डालना तो आप चाहता डाल है, सकते हो उधर. आंख बंद करके लगा सकते हो वहाँ पे, उस एरिया में. less risk, average returns. Average returns. Retirement money. Simple as that. Okay. Yeah. Downtown. Downtown is downtown यार. मतलब यार कोई कितना भी बोले, कुछ भी बोले, बुर्ज खलीफा को देखने का मजा तो मुझे तो आता है, आज भी आता है, तुझे भी आता है, तू भी आया था, तेरे को पता है. You know, कुछ भी बोला यार. When you enter into an apartment with जैसे बुर्ज खलीफा भी, यार वो मजा तो है. यार बेचारे बुर्ज खलीफा का क्या होएगा यार? नहीं, कितने कमेंट्स आते हैं हम लोग को, ये बुर्ज खलीफा के अंदर है, उसमें व्यू नहीं है, क्या फायदा? मैं लास्ट टाइम नहीं बोला था कि लोग आपको देख रहे हैं. अब वो बात तो है ना यार, पर अभी पब्लिक को कहाँ समझाए? नहीं, नया फाउंटेन आ गया ना अभी, तो वो देख बट लो यार. अभी वही है ना कि बुर्ज खलीफा से ज्यादा प्राइस जो बुर्ज खलीफा के सामने प्रॉपर्टी है उसकी उसकी हो गई. Why? Because everyone would like to. And you Burj can't go wrong Khalifa with देखना. prime look. See, prime is it's called prime for a reason, right? So you can never go wrong. If you have the money, buy it. So Dubai downtown में how much money should you have and how much return can you expect? See, in a good, I'll just Identify one location in downtown. Say- downtown तो पूरा वही है. Business में? बिजनेस पे नहीं, ऐसे बिजनेस में डाउनटाउन इज डिफरेंट भाई. अच्छा, तो डाउनटाउन में मेरे को डाउनटाउन डिफाइन कर, Yeah. किधर आता है डाउनटाउन? See, downtown is basically the entire area around Burj Khalifa. Okay. Okay, it's a nice C shape or a circular area you can say. फिर उसके एक लेन पीछे से बिजनेस भी स्टार्ट होता है. हम लोग ने एक म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर के पीछे एक प्रॉपर That is That is DIFC. 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 That is Okay, that is DIFC. also DIFC. Yes. So give me an example of Dubai downtown, one building name, what is the existing price point and what is the rental? We did one video, 2.5 million dirham. Yeah, I think that was a 1-bedroom if I'm not mistaken. नहीं. तो That big 5,000 square feet house, duplex.
अरे यार एड्रेस स्काई व्यू. Skyview is not, Skyview is different. आप उसको नॉर्मल में नहीं डाल सकते. ठीक है तो नॉर्मल में क्या? सॉरी माय मिस्टेक. तू 6 करोड़ रेंटल वाली प्रॉपर्टी को नॉर्मल गिन रहा है. I wish I have that normal. So talk about Forte, talk about Act Yeah, like 1, Forte Act 2. for an example. Yeah. Let's assume Forte. So the standard pricing of a 2-bedroom in that Forte tower by MR is 3.3 million से लेके 3.5 million तक. दिस इज For द a आस्किंग two-bedroom. प्राइस, For a द two-bedroom. परचेज प्राइस. For a 2-bedroom. ठीक, आज की तारीख की बात कर रहा हूँ मैं. And you can easily rent it out for roughly around 180 to 200,000 dirhams. सो अराउंड 6 to 7%. 3 मिलियन का कितना बोला आपने? 3 मिलियन अगर डील मिली तो 3.5 मिलियन पकड़. 3.5 पकड़ 2 लाख दिरहम के आसपास, 6% के आसपास. ठीक है. सी लग्जरी लोकेशन में रेंटल थोड़ा कम होता है बिकॉज कैपिटल वैल्यू बढ़ जाती है. हम्म. ठीक है, लेकिन यू विल स्टिल हैव द वैल्यू इज स्टिल देयर. So 5 से 6% डाउनटाउन में. Downtown will be 5 to 6. Yes. Now tell me one thing, in downtown if I would have taken a property and I would put it on a daily rental, some sort of a bed and breakfast, Airbnb, what would my returns be? See now again it's very seasonal. So this is where that speculative pitches come into the act के सर अक्टूबर टू मार्च में तो सर रोज का 1000 दिरहम तो कहीं नहीं गया है, आपका 15-16% तो कहीं नहीं गया है. अगेन मिला तो अच्छी बात है, बट डिपेंड्स ऑन द बिल्डिंग, डिपेंड्स ऑन द व्यू, डिपेंड्स ऑन हाउ ब्यूटिफुली यू फर्निश्ड इट. सो एवरेज if you're looking at a 1-bedroom fully furnished Airbnb kind of a concept in a peak season, you can get 600-700 dirhams or 1000 dirhams a night depending on the building location. Others in a slow season it's 300-400 dirhams per day. Okay. So see short term rental is purely on how efficiently you manage it. Okay. It is purely in your hands or the agency who manages it for you. अगर अच्छी एजेंसी मैनेज कर रही है तो आपके अच्छे चांस, बिकॉज उनके फोटोज़ कैसे डाले, उनकी मार्केटिंग कैसी हुई, तो वो फ़र्क है. लेकिन अदरवाइज ऑन अ नॉर्मल लॉन्ग टर्म रेंटल बेसिस 5 to 6% इन डाउनटाउन. 1-bedroom प्राइसिंग वुड बी एवरेज 2 million प्लस. 2-bedroom स्टार्ट्स एट 3 million एंड 3-bedroom फिर तो स्काई इज द लिमिट. और स्काई व्यूज तो सर अलग ही प्रॉपर्टी है, मतलब वो तो हम बात भी नहीं कर सकते. क्यों? हम करेंगे. हाँ, मतलब उसमें जैसे हमने शूट किया था 6 करोड़ रुपया साल का रेंटल. मजा आ गया मेरे को. हाँ घर था वो. Exactly. हाँ घर था. एंटर करके मेरे मुंह से बोला, वो मास्क करके एक मूवी होती थी लेट 90s में, उसमें जिम कैरी ने एक मास्क डाला और उसको ही सीज कैमरन डियाज फॉर द फर्स्ट टाइम, उसको जबड़ा गिर जाता है. वो मेरा जबड़ा गिर गया था. मैं बोला वाह, दिल खुश हो गया मेरा. 5,000 square feet apartment, 6 crore rentals. अरे व्हाट, ओ माय गॉड. उसका साला उसका जो बालकनी था ना, वो हमारे बॉम्बे की 3 bedroom के जितना था. Exactly. खुश हो गया देख के, खुश हो गया. But yeah, Okay. these prime areas, of course, you know. ओके सर. Automatically वो मेगेस की टीम में आ आएगा और मेरे साथ भी हो जाएगा. अरे ये सॉल्ट इनेस का स्टोरी बता. सो इनेस, यू नो, शी इज हाँ. फ्रॉम लाटविया ना, तो हाँ. वो हमारे साथ वो इवेंट में आई थी. ठीक है, तो 2-3 लोग तो सिर्फ उसको देखने आए थे. शी इज वाइट ना. तो हमने पूछा कि आप, नहीं हम तो मैडम को देखने आए. ठीक है जी. तो ये है हमारी दुबई की कहानी. अगर आपको पसंद आया तो प्लीज कमेंट कीजिए, बताइए हमें, फैमिली के साथ शेयर कीजिए. अगर नहीं पसंद आया तो नो प्रॉब्लम सर, देयर इज ऑलवेज समवन एल्स कंटेंट दैट यू कैन सी. बट आई वुड लाइक टू हैव यू गाइज अगेन एंड कंटिन्यू दिस कॉन्वर्सेशन. देयर आर मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे को आपके साथ बात करनी थी. अब हम कंटिन्यू करेंगे, दुबई में आएंगे और आपके ऑफिस में एक वीडियो बनाएंगे. जी, डन सर. Definitely. You're most welcome. You're most welcome. most welcome.